Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add prefix 011 to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। कार्यक्रम में आज आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। आज सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा नेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Retail inflation surges to 6.07% in February. Wholesale inflation rises to 13.11%. Domestic stocks climb more than 1.5%. Sensex closes near 56,500. Nifty settles above 16,850. Global stocks trade mixed and Brent crude prices hover around $109 per barrel. फरवरी महीने में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 6.07% और थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11 पर पहुंची। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक का उछाल आया। सेंसेक्स 56,500 के नजदीक पहुंचकर हुआ बंद। निफ्टी 16,850 के स्तर से ऊपर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $109 प्रति बैरल के आसपास रहीं। कार्यक्रम में सबसे पहले शेयर बाजार जी और शेयर बाजार से पहले हम मुद्रास्फीति से हमारे पास एक स्टोरी है। जी। Inflation based on consumer price index CPI surged to 6.07% in February this year. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, this is the second consecutive time that the CPI data has come over the Reserve Bank of India RBI upper margin of 6%. CPI inflation rises to 8-month high. The annual inflation rate in India increased to a 7-month high of 6.01% in January of 2022 from an upwardly revised 5.66% in December 2021. The government has mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side for a 5-year period ending March 2026. Wholesale inflation rose to 13.11% in February as compared to the corresponding month of the previous year. According to the Ministry of Commerce and Industry data released today, inflation based on wholesale price index WPI witnessed a spike mainly due to rise in prices of crude petroleum and natural gas, mineral oils, metals, chemicals and food articles. WPI inflation logged double-digit rise for the 11th consecutive month in February this year. It was 12.96% in January this year, while it was 4.83% in February 2021. While the Reserve Bank of India considers Consumer Price Index CPI-based inflation for its key policies, however, high WPI inflation is seen as a precursor to higher consumer prices as producers pass on rising costs to their
customers? Well, Yamini, we know that US is fighting inflation at a very high level. Things have doubled. How do you see this inflation when it has surged to the CPI, surging to 6.07%? How bad, good or bad, or worse is it? It is a matter of concern because especially inflation is going to be hardening if the crude oil prices don't come down and the conflict does not find a diplomatic resolve. So thereby not only in India but world over there would be serious issues of inflation. Also, because of inflation, the monetary policies will not remain accommodative and they may move to a tightening stance, which will make it difficult for people during the process of economic recoveries to further strengthen their positions or to whatever difficult situations they have gone through. So overall, any economic growth that we look at will come down primarily because of inflation. जी, हमारे आज के सबसे पहले कॉलर गुरुग्राम से हमारे साथ हैं अनिल फोन लाइन पर। हेलो जी अनिल जी, मार्केट मंत्रा टीम जी नमस्कार। आप जो प्रोग्राम के एंड में डेली जो गोल्ड का रेट बताते हैं जी, तो उसमें कभी फ्यूचर का कुछ रेट होता है? मीन्स एक कॉमन मैन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आज अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे किस रेट पे गोल्ड मिलेगा, और ये भी उसमें क्लियर नहीं होता कि ये 24 कैरेट का है 22 कैरेट का है। तो अगर आप इस जानकारी को थोड़ा सा अगर वेरीफाई करके बताएं तो एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट होगा वो। जी, हम लोग मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर जो गोल्ड के जो वायदा भाव होता है सोने का वो बताते हैं, और आपका कहना है कि आप चाहते हैं कि हम स्पॉट गोल्ड के भाव भी आपको बताएं। हम प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में कि आपको स्पॉट गोल्ड के भी हम प्राइस बताएं। Yes, and now we are joined by Manas, who's calling us all the way from Bengaluru. Hello, Manas. Hello, good evening. Yes, Manas, good evening. Please ask your question. Okay, thank you. जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया, उसमें SIP किया काफी लंबे समय तक, 2-3 साल तक मैंने SIP किया, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब मैं उस फंड का रिव्यू करता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब होने लगता है। 4-5 रेटिंग से उसकी रेटिंग 3 तक आ जाती है, और मैं पीयर रिव्यू करता हूँ, पीयर कंपैरिजन करता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसमें SIP रोक के उतना ही पैसा किसी दूसरे स्कीम में लगा देना चाहिए उसी सेम कैटेगरी की, और क्या मुझे वो पैसा उसमें से निकालना चाहिए और नई स्कीम में वो पैसा भी लगा देना चाहिए, या वो पैसा उसी में रखना चाहिए? कृपया इसके बारे में बताएं। जी देखिए, जब आप SIP करते हैं तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी एवरेज आउट हो जाती है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है वो वेरी करती रहती है किस तरीके से स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हैं और उनकी क्या ओवरऑल पोर्टफोलियो की NAV रहती है। इसके लिए ये जरूरी देखना है कि जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कंसिस्टेंटली पुअर होती जा रही हैं या वो कंसिस्टेंटली वॉलेटिलिटी दे रही हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं। अगर ऊपर नीचे कर रही हैं और फंड की रैंकिंग आसपास है आपके रिक्वायर्ड रिटर्न के आसपास या आपके रिक्वायर्ड रैंकिंग के आसपास, तो बेहतर रहता है कि आप उसमें बने रहें। पर अगर उसकी रैंकिंग गिरती जा रही है और कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, तो बेहतर रहता है कि आप एग्जिट करके दूसरे फंड में स्टार्ट करें अपने SIPs। जी, और क्या इसमें कोई एग्जिट चार्जेस भी लगते हैं अगर स्कीम से बाहर आना चाहता है? जी, एग्जिट चार्जेस लगते हैं। जी, रत्नाकर हमारे साथ फोन लाइन से हैं। जी, इससे पहले हम खजुराहो से हमारे एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं, जितेंद्र फोन लाइन पर बहुत देर से। जी जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, और यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते मैम। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हम रशिया से लोकल करेंसी में जो ट्रेड करते हैं मतलब करेंगे, तो उसमें क्या यूनाइटेड नेशन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? दूसरा क्वेश्चन है कि WTO में जो विकसित देश है, विकासशील देशों का जो सब्सिडी वाला है 10% से ऊपर का जो विरोध करते हैं, तो उस सब्सिडी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं मैम? थैंक यू। जी, आपका पहला सवाल रशिया के लोकल ट्रेड को लेकर है। अगर लोकल ट्रेड होता है तो
सैंक्शंस लग सकते हैं जो लोग रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि इन सैंक्शंस का इफेक्ट क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेड नहीं करते उन कंट्रीज के साथ जो रशिया के साथ शायद ट्रेड करें या उनके साथ इकोनॉमिकली फ्रेंडली रहें, तो सीधा असर उनकी इकोनॉमीज पे पड़ता है। जहां तक WTO का सवाल है, जो सब्सिडीज हैं वो उनके एक्सपोर्ट्स में मिलती हैं, जिसके जो भी उनके एक्सपोर्ट्स होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज को होते हैं, तो उसके लिए वो सब्सिडी ग्रांट की जाती है। एंड नाउ वी हैव रत्नाकर कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। जी रत्नाकर जी, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जो हम डे टू डे बेसिस पर नहीं तो कभी शेयर्स लेते हैं, तो उसका प्लेजिंग करना जरूरी है क्या? वो प्लेज क्यों करते हैं, ये एक सवाल है। और ये ऑलरेडी मार्केट आज भी 900 पॉइंट से ऊपर है, तो ऐसे फिर में कौन से सेक्टर है कि वो उसमें पोटेंशियल रखते हैं और भी बाइंग के? जी, आपका पहला सवाल है डे टू डे ट्रेडिंग में जब आप सेल करते हैं तो प्लेज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है जो वो आपसे मांगते हैं, जिसके तहत आप अगर वो नहीं रखते तो आप प्लेज कर दें और फिर जब भी आपके शेयर सेल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएंगे, इसलिए वो आपसे वो प्लेज मांगते हैं। जहां पे 900 पॉइंट्स की बात है, वो 900 पॉइंट्स इसलिए बढ़ा है क्योंकि बैंकिंग और जो IT सेक्टर है उसके सेंटिमेंट्स हाई रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि ये 5th कंसेक्यूटिव पीरियड में हायर नोट पे रहा है, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसके जो रिजल्ट्स आए थे उसके हिसाब से जो ओवरऑल रिफॉर्म की गति है वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी मानी जा रही है कि वो रहेगी। और एक ये स्ट्रेंथन करता है जो अभी प्रेजेंट रिफॉर्म्स चल रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस को, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है। गाजियाबाद से गौरव अपने सवाल के साथ हैं। हेलो। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम जी। नमस्ते मैडम, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी अच्छा हो गया है, और ये जो सेफ्टी कुशन है, क्या इसका प्रयोग ये अभी जो हमारा फर्टिलाइजर क्राइसिस होने वाली है या हो सकती है, या पेट्रोलियम क्रूड है उसको प्राइस को कम्पेंसेट करने के लिए किया जा सकता है क्या? ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बड़ा है, ये कहाँ डिप्लॉय किया जाता है? क्योंकि नॉर्वे के फंड्स और कुवैत के फंड्स ये काफी अच्छा 5-6% निकालते हैं पैसा इन्वेस्ट करके वर्ल्ड वाइड। हमारी सरकार इसका क्या करती है? क्या ये इस हमारे ऐसा फंड जो खराब समय के लिए रखा जाता है वो हम अभी यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि समय तो निकल जाएगा, अभी क्राइसिस भी जल्दी चली जाएगी, क्योंकि डायमंड इज फॉरएवर, नॉट मिस्टर पुतिन। थैंक यू जी। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व जो $631 बिलियन US के आसपास है, इनको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो US की ट्रेजरीज हो या कहीं और की सिक्योरिटीज हो। प्राइमरीली इनके रिटर्न के ऊपर फोकस किया जाता है जो सेफ रिटर्न्स रहें। काफी डिबेट रही है कि सोवरेन वेल्थ फंड्स क्रिएट किए जाएं जहां पे इनका निवेश बाकी चीजों के लिए किया जाए, पर क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरह रखा जाता है, इन्हें उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार जो है ये RBI बाइंग और सेलिंग ऑफ डॉलर्स के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखती है। जहां तक पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ने की बात है, उसमें अगर कमी करने की आवश्यकता हो सकती है तो वो एक्साइज टैक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई कमी आए। All right, we are now joined by Gurunath from Thane. Yes, Gurunath ji, please ask a question. जी मैम, नमस्कार। जी मैम, एमिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, अभी ये जो नीचे जो अपना ये जो मार्केट जो शेयर मार्केट जो है वो करेक्शन बहुत हुई है और नीचे भी आ गया, जो 60 के ऊपर चल रहा था। मैम, ये जो 2020 में जो अमेरिका में जो ये जो लॉकडाउन होगा, वहाँ पे भी कोविड की जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने जो पैसा रिलीज किया और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा दिया गया, और वही पैसा उठा के वो लोग अपने शेयर मार्केट में लगाते। फिर अभी मैडम ये जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश की, तो वो लोगों ने पैसा निकालना फिर शुरू किया। तो क्या इन्हीं लोगों की वजह से ये जो मार्केट तो बहुत ज्यादा ऊपर, क्योंकि अपना लॉकडाउन में हमारी इकोनॉमी भी इतनी सिचुएशन मतलब ठीक नहीं थी, फिर भी मार्केट ऊपर ही जा रही थी 2020-21। तो सर मैडम, क्या ये आगे भी ये करेक्शन होते रहेंगे इन लोगों की वजह से? जी देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो FIIs कहलाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इनका एक काफी हद तक स्टॉक मार्केट्स के ऊपर असर रहता है,
क्योंकि इनके जो पोर्टफोलियो साइज, जो इनके निवेश करने की स्थिति होती है वो कहीं ज्यादा होती है, और जब वो निवेश करते हैं वो स्टॉक मार्केट्स को ऊपर बढ़ाते हैं, और जब वो निवेश निकालते हैं तो वो स्टॉक मार्केट्स नीचे जाती हैं। FIIs अपने पोर्टफोलियो जो निवेश की धन है उसको जो है अलग अलग जगह पे निवेश करते हैं, और क्योंकि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है इसलिए माना जा रहा है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। Right, we'll go in for a short commercial break and shall be back soon. Please stay tuned. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मुंबई से गोपाल, अपने सवाल पूछना चाहते हैं। जी गोपाल जी। जी नमस्ते जी, मार्केट मंत्र में नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल है, मेरे सवाल सुन लीजिए, जवाब बाद में देंगे तो अच्छा रहेगा जी। पहला सवाल ये है कि मैंने काफी दाम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने 5 लाख रुपए मार्केट में लगाए हैं। 10,000 पॉइंट गिरा था पीछे 1-2 महीने में, तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट 5 लाख का 3.5 लाख हो गया। अभी 3,000 पॉइंट चली है, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट वहीं के वहीं है। मेरा इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल किसी का ध्यान ही नहीं रहा, ना सरकार का ना कंपनियों के बारे में किसी। इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए, खाली टॉप लाइन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने सारे अकाउंट होल्डर अकाउंट खोल रहे हैं मार्केट में अभी। जी सवाल पूछिए आप प्लीज गोपाल जी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख रुपए कम हो गया है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं आगे करूँ क्या। कहना है को कंटिन्यू विद माय इन्वेस्टमेंट और आई विल रिमूव द ऑल स्टॉक। जी देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे काफी हद तक सरकार का रुझान रहा है, जहां पर MSMEs को सपोर्ट किया गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप जब मार्केट्स बढ़ती हैं तो उसके अंदर भी हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट्स बढ़ेंगी आपको आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर आपने किस पे निवेश किया है उस पे निर्भर करेगा कि वो मार्केट के साथ कैसे जाता है। जिसे हम कहते हैं एक स्टॉक का बीटा होता है, वो उसके साथ मूव करता है। All right, so we are now joined by Vikas from Gurugram. Ji. Thank you. Good evening, everyone. Good evening. Yes. My question is related to FIIs. Mm-hmm. We know that FIIs have been selling big time, on a daily basis as against buying, चाहे वो यूक्रेन रशिया का रीजन हो या क्रूड ऑयल प्राइस राइज हो. So is it fair to say that this time FIIs are selling at bottom? They will buy at the top and will give an additional boost to the market? Well, FIIs usually are institutional investors who have a lot of information at their hand, and they tend to seek portfolio diversifications where the returns come to be the highest. So I still feel that they sell at the highest levels and they buy when the markets are at the bottom. So whenever the markets are going to go down, they will seek a entry point at that point. जी, दिल्ली से अनिल सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। जी गुड इवनिंग जी। मेरा प्रश्न है, जब हम शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, जो इसको हम रिटर्न में हमें दिखाना चाहिए, और जो क्या इस पे टैक्स लगता है, या मतलब पहले जो सेल या परचेज करते हैं टैक्स तो उस टाइम दे भी देते हैं कुछ, नहीं? जी जब आप खरीदते हैं तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, पर जब आप बेचते हैं तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे आप कोई भी एसेट बेचेंगे उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके 12 महीने के अंदर अंदर जब आप बेचते हैं तो होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12 महीने के बाद अगर आप स्टॉक को बेचेंगे तो होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स देना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप अपनी इनकम के साथ ऐड करते हैं, और जो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट
रेट्स हैं उसके हिसाब से आप इनकम के बेसिस पे पे करते हैं. Alright, good you clarified. I think many people would have had this doubt which you clarified. We're now joined by Atanu Shaha from Kolkata. Yes, Atanu. Good evening, ma'am, to everybody, ma'am. My first question, what is Investors Protection Fund and how is it work? And my second question is, what is National Commodity and Derivative Exchange, and same, how is it work? Thank you. Investor Protection Fund is a fund which is primarily caters to the activities in protecting the investor from any kind of a difficulty in the trade, or any kind of a possible fraud in the trade, or creating awareness among the investors for the purposes of trading in the stock markets. When we talk about the National Commodity Exchange, it is an exchange primarily where commodities are traded. Since there are no deliveries, there are majorly in future contracts or forward contracts that these particular trades take place. जी, सतीश चंद्र दिल्ली से सवाल के साथ हैं अपने. हेलो जी. हाँ सतीश जी, सवाल पूछिए. मेरा सवाल ये है कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में शेयर्स क्यों चले जाते हैं, और क्या ये नोटिस नहीं देते कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन शेयर फंड में जाने से पहले शेयर होल्डर को कि आपके शेयर्स वहां जा रहे हैं, और अगर ये गलती उसकी रजिस्ट्रार की या इनकी है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं उन पर? जी, आपका सवाल शायद इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से नहीं होगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पे होगा. इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपके शेयर्स नहीं जाते. जो फंड्स होते हैं वो प्राइमरीली यूज होते हैं आपकी एजुकेशन पर्पसेस के लिए. जो भी शेयर्स कॉन्फिस्केट होते हैं वो वही होते हैं जिनके अंदर डिलीवरीज नहीं होती. जी, और अब हम बात करते हैं शेयर बाजारों की. आज सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% से आसपास का उछाल आया. दोनों घरेलू जो सूचकांक हैं शेयर के उनमें तेजी रही. बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 56,500 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,850 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 936 अंक बढ़कर 56,486 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 241 अंक की वृद्धि से 16,871 पर पहुंच गया. व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में मामूली 0.2% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.31% का उछाल आया. The Sensex and the Nifty today climbed around 1.5%. Both domestic key stock indices surged amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex closed near 56,500 points, while the NSE Nifty settled above 16,850 level. The Sensex rose 936 points or 1.68% to end at 56,486. Nifty also gained 241 points or 1.45% to finish at 16,871. In the broader market at the BSE, the mid-cap added marginally by 0.2% and the small-cap index surged 0.31%. In the Sensex pack, 26 companies logged gains while 4 witnessed losses. Infosys was the top gainer as it rose 3.8%, followed by the HDFC Bank, which added 3.3%. SBI gained 3.1% and Maruti climbed 2.9%. On the other hand, Hindustan Unilever slipped 1.7%. Sun Pharma declined 1.1%. In sectoral indices at the BSE, 13 indices gained while 6 logged losses. Bankex gained the most as it rose 2.3%. IT and tech gained 2.2%. Finance appreciated 1.8%. On the other hand, Realty Index fell 1.7%. Oil and gas slipped 0.9%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,749 companies gained while 1,725 fell. Shares of 138 companies remained unchanged. So, Dr. Yamini, how do you view this BSE Sensex closing at 56,500 points? We had touched 60,000, especially in the COVID times or post-COVID times when the
whole world was talking about economic recovery. At this stage, can we say we are still, we are on great fundamentals, sound fundamentals, our economy? Well, overall, the economic reforms are towards the positive side. If we look at the infusion in terms of the infrastructure investments, they are giving a strong push. Also, the digitalization and a lot of focus on science and technology. This is giving a greater push to the economy. Further, financial inclusion that we may talk about, and also the social inclusion that has been going on, is creating an overall inclusive growth in the economy. Right. The projected growth rates of above 7.5% by all means, even in the worst case scenarios of a higher inflation, do indicate that the economic recoveries are positive, if not 9.5%. And the fact that we have foreign exchange reserves of $631 billion, also maintaining our export positions and the overall fiscal deficits within the range, taking care of the COVID recoveries that are there, and the vaccination, which is the most important, keeping the recoveries intact. And now the vaccination for the children will also begin. They're all in the positive direction. जी, और अब बात घरेलू मुद्रा की करें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 3 पैसे मजबूत होकर $1 की तुलना में 76 रुपए 57 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। रुक करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। दक्षिण पूर्व एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट दर्ज हुई। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष बढ़ने और चीन में नए बैंक ऋणों में गिरावट से चिंताओं के कारण क्षेत्र में अधिकांश बाजारों का प्रदर्शन कमजोर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 5.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 2.6% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% की गिरावट में रहे। हालांकि जापान के निकेई में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में आज तेजी रही। लंदन के FTSE 100 में 0.1% की मामूली बढ़त रही। फ्रांस का कैक 0.4% और जर्मनी का डेक्स 1.7% लाभ में रहे। Talking about oil now, well, oil prices today fell around 4%. In intraday trade, Brent crude was trading around $108.70 per barrel, while WTI crude prices were at $104.70 per barrel. जी, और निर्यात के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। इस वर्ष फरवरी महीने में भारत का निर्यात $57 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले ये 25.41% की वृद्धि दर्शाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश का कुल निर्यात $601 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 36% से अधिक है। और अब बात करते हैं सोने की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना 720 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अप्रैल माह के अनुबंध के लिए सोने का भाव 52,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। मार्च वायदा कारोबार के लिए चांदी 1,020 रुपए टूटकर 69,350 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना गिरावट के साथ $1,963.60 प्रति औंस, जबकि चांदी मंदी के साथ $25.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। तो यामिनी जी, बस बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जो सबसे पहली जो हमने समाचार दिया था मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ, तो मुद्रास्फीति के मोर्चे पर जो अभी कुछ परेशानियां हैं और जो रिजर्व बैंक का जो निर्धारित एक दायरा है 6% का, उससे ज्यादा जा रही है। रिजर्व बैंक के सामने क्या चुनौतियां देख रही हैं वो? जी देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से, और जो फेडरल रिजर्व बैंक अगर रेट्स बढ़ाता है तो उसकी वजह से जो पोर्टफोलियोज चेंज होंगे FIIs का, उसका सीधा असर हमारे रुपए पे और हमारी स्टॉक मार्केट्स पे पड़ेगा। तो ये दो खास तौर पे चैलेंजेस हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करते हुए वो रेट्स को कैसे मेंटेन करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई स्टूडियो में आकर और आपने सवालों के जवाब दिए श्रोताओं के और कुछ खबरों पर चर्चा भी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एंड बिफोर वी क्लोज फ्रेंड्स, एज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Retail inflation surges to 6.07% in February. Wholesale inflation rises to 13.11%.
Domestic stocks climb more than 1.5%. Sensex closes near 56,500. Nifty settles above 16,850. Global stocks trade mixed and Brent crude prices hover around $109 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. This is Lalima Aneja Dang and Vishal Sharma bidding adieu. Market Mantra.